Today we will discuss divide and conquer recurrence relations. Pallavi, Pallavi, are you there? Yes, ma'am. Okay. तू जे एक्झाम्पल सॉल्व केलंय ते राईट आहे, फक्त जी हाँ सी ची व्हॅल्यू आहे ना ती तुझी काहीतरी हाँ मैम 49/8 आली 8 वाटतं ना. हो ती हो 8 चुकलंय, हो ती का 49/20 येते. ओके मैम ते कुठल्या स्टेपला चेक चुकलंय करेल ते डबल बघावं लागेल आपल्याला. हो चालेल Today we will discuss divide and conquer recurrence relation. So first we will recall the merge sort recurrence relation which we have seen. We have solved it using plug and chug method. Hope you remember that. The recurrence used by merge sort algorithm for n greater than or equals to 2 and power of 2 is 2t(n by 2 plus n minus 1 with early terms t1 equals to 0. Now, if you have seen Fibonacci recurrence, you have seen Towers of Hanoi recurrence, and you have seen many other recurrences in our last lectures. You found that there is an equals to 2, an minus 2, an minus 1, 6, an minus 2, something like that. N minus 1, n minus 2. Here in merge sort, we are using this n by 2. So, n by 2 and n minus 1. What is the difference between these two expressions? It divides n into half, and this decreases n by 1. Okay, so n changes, great change, or you can say n, there is a good change in n by 2 expression, and little change in n minus 1 or n minus 2 expression. So if this is a function, then we treat this as linear. Change is linear. You know the graph of linear values, and here the change is drastic. N is divided into middle, n is divided into half. So curve changes drastically. Hence the recurrence shown using such terms or such functions is linear recurrence, and recurrence shown with such terms is divide and conquer recurrence. So merge sort uses divide and conquer recurrence. This is the general formula of divide and conquer recurrence relation. Linear recurrence का formula आपको याद है? कोई बता सकता है? Linear recurrence का formula हमने ऐसे लिखा था, C1 a n minus 1 plus C2 a n minus 2 plus C3 a n minus 3 dot 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 plus ck a n minus k for ck not equals to 0. This was the general form of linear recurrence, and this is the general form of divide and conquer recurrence. Here it is summation of these terms, summation of ai, where ai is positive constant. I goes from 1 to k. It is summation of ai terms from 1 to k. Function. This t have subscript which is made up of these two variables. One is bi, bi goes from 1 to k, that is constant between 0 and 1. There is no restriction on a1, but there is a restriction on bi.
that bi has value between 0 and 1 only. This b has value between 0 and 1 only, and this gn is one general function that is non-negative function. This is the general form of divide and conquer recurrence relation. For example, if I take a1 equals to 2 and b1 equals to 1 upon 2 means 0.5, and g of n gives n minus 1. If value of a1 is 2, value of b1 is 1 upon 2, and value of gn is n minus 1. Put these values into this equation. So it will look like this, t of n equals to, now summation means only one term is given. So no need to write summation, only one a1 is given. So you just write here a1 t b1 n plus gn. So here this a1 is 2, t is, b1 is 1 upon 2, so it is n by 2 plus gn is n minus 1. yes. Do you know this recurrence relation? Have you seen this ever? देखा है क्या इससे पहले ये रिकरेंस हमने? नहीं देखा है? ये है वो, सेम है क्या? तो अगर हमने a1 की वैल्यू 2 ले रखी है, b1 की वैल्यू 1/2 ली है और gn n-1 है, तो ये हमें मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस देता है. यहाँ पर हम a और b की और g मतलब फंक्शन जो भी लिखते हैं, तो जो भी डिवाइड एंड कॉन्कर काइंड ऑफ रिकरेंस होगा उसका जनरल फॉर्मेट यही है. सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस. t of n summation from equals to 1 to k ai t bi n plus gn. So merge sort is an example of divide and conquer algorithm. It divides the input, conquers the pieces, and combines the result. Analysis of such algorithm commonly leads to divide and conquer recurrences, which have this form, which is shown here. Same thing on the previous slide. Okay. Now next, we have to learn how we can solve divide and conquer recurrences. जो divide and conquer recurrence हमने पहले देखा है merge sort, वो merge sort हमने plug and chug मेथड से सॉल्व करके देखा है. और उसके बाद हम कुकबुक मेथड में आए थे, और कुकबुक मेथड हमने लीनियर रिकरेंसेस के लिए पढ़ी, जिसमें हमने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस रिकरेंसेस कैसे सॉल्व करते देखा है. अब हम डिवाइड एंड कॉन्कर काइंड ऑफ रिकरेंसेस कैसे सॉल्व करते वो देखेंगे. तो पहला मेथड है, पहली मेथड है यूजिंग अकराबाजी फॉर्मूला. दिस इज a name of the scientist given to the method. This scientist has given one formula, this formula. The asymptotic solution of general divide and conquer recurrence is, divide and conquer recurrence आया तो डायरेक्टली हम ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं. जैसे हमने लीनियर रिकरेंसेस में अलग अलग इक्वेशंस देखे थे कि अगर एक रूट आया तो ये इक्वेशन है, दो रूट आया तो ये इक्वेशन है, एक ही ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का रिकरेंस है तो ये इक्वेशन है. वैसे अगर डिवाइड एंड कॉन्कर का रिकरेंस है तो ये इक्वेशन है. तो आपको सबसे पहले तो जो भी रिकरेंस सामने आता है उसको पहचानना जरूरी है.
कि वो लीनियर है या डिवाइड एंड कॉन्कर है। अगर लीनियर है तो फिर होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो अगर आप ये रिकरेंस पहचान सकते हो तो ही आप प्रॉपर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये आप फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिख लो, ये आपको बार बार लगने वाला है। ये सॉल्यूशन है डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन का, थीटा n raised to p 1 plus integration from 1 to n g of u upon u raised to p plus 1 du, where p satisfies, ये जो p है ये p ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कोएफिशिएंट्स है दोनों ai और bi फ्रॉम i 1 to k और bi raised to p लिया है, इनकी एडिशन summation of products is always equals to 1। ये जो p है ये सेटिस्फाई करता है। Write down this in your notebook. Finished? अगर फिनिश हो गया तो फिर हम सबसे पहला एग्जाम्पल मर्ज सॉर्ट का ही लेंगे। मर्ज सॉर्ट में जो डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन है वही एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। सो राइट डाउन द एग्जाम्पल नाउ। सॉल्व T1, और यहाँ पर अब ऐसे लिखती हूँ T1 इक्वल्स टू 0 एंड T ऑफ n इक्वल्स टू 2T n by 2 प्लस n माइनस 1। तो जब ये फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो फिर सबस्क्रिप्ट की तरह लिखने की जरूरत नहीं है अब इसको, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। For n greater than or equals to 2, solve merge sort recurrence using अकराबाजी फॉर्मूला। सो कैसे सॉल्व करें इसको? पहले तो हम जो इक्वेशन है अकराबाजी फॉर्मूला वो इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर। तो we can write it lightly like this: the asymptotic solution to the general divide and conquer recurrence is, बताओ फॉर्मूला, T of n equals to n raised to p फिर 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n, फंक्शन है g of u अपॉन u raised to p plus 1 du, first bracket close, second bracket close, where रिकॉल करने के लिए p का भी फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग, where p satisfies, बोलो p का कैसे है, फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 up to k ai bi raised to p equals to 1। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमने फिर से लिख लिया। अब सबसे पहले ये अकराबाजी फॉर्मूला यूज करने के लिए हम
p की अप्रोप्रिएट फॉर्म वैल्यू ढूंढते हैं कि कौन सी वैल्यू ले p की कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमें मर्ज सॉर्ट रिकरेंस सॉल्व करना है। तो उसके लिए p की कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं सो दैट ये जो है ai bi रेस टू p इक्वल्स टू 1 आएगा। तो पहले तो p इक्वल्स टू 0 से शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो लेट p इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने देखा ai bi रेस टू p, अगर ये ai है 2 और bi है 1/2, 1/2 रेस टू 1 किया तो ये 2/2 आ जाएगा और 2/2 1 आ जाएगा। तो p की वैल्यू सुटेबल है। अगर मैंने यहाँ पर p की वैल्यू 0 ली तो फिर ये 2 इंटू 1/2 रेस टू 0 मतलब 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, हेंस p की वैल्यू 1 ज्यादा सुटेबल रहेगी। तो अगर p की वैल्यू 1 है, मर्ज सॉर्ट रिकरेंस में एक ही टर्म है, इसके लिए फिर से हम लोग ये मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस लिख लेते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस है t ऑफ n इक्वल्स टू 2 t ऑफ n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। यहाँ पर एक ही टर्म है और ये आपका फंक्शन है। ओके, तो ये है आपका g ऑफ u और ये है आपका फंक्शन। तो फंक्शन में सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए a1 होगा और b1 भी होगा। a1 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है 1/2। ओके, तो फिर जो हमारा इक्वेशन है समेशन ऑफ ai bi रेस टू p, तो समेशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ a1 इंटू b1 रेस टू p इक्वल्स टू चेक करना है। तो a1 है 2, b1 की वैल्यू है 1/2 और p की वैल्यू हमने कंसिडर की है 1, तो ये आ जाएगी आपकी 2 इंटू 1/2 which is equals to 1 and it is satisfying. So p equals to 1 satisfies the condition. So अब p की वैल्यू 1 कंसिडर करके जो हमारा अकराबाजी फॉर्मूला है उसमें हम p की वैल्यू 1 डालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला t ऑफ n, थीटा वैसे के वैसे रहने देते, n रेस टू p मतलब n रेस टू 1 इंटू 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू n, फंक्शन है हमारा ये है g ऑफ n, n माइनस 1, g ऑफ n है। तो g ऑफ u अगर मुझे कंसिडर करना है तो g ऑफ u में यहाँ पर मैं क्या लूंगी u माइनस 1। g ऑफ n कंसिडर करना है तो आप इसको n माइनस 1 ले सकते हो, लेकिन ये जो हमने लिमिट लिया है 1 से n तक अलग अलग रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर u कंसिडर किया है। आप n भी कंसिडर कर सकते, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा अपॉन u रेस टू क्या था फॉर्मूला p plus 1 p प्लस 1 मतलब 1 प्लस p plus 1। ओके, 1 प्लस 1 और ये है आपका du, डेरिवेटिव, एक ब्रैकेट क्लोज दूसरा ब्रैकेट क्लोज। अभी इसको सॉल्व करना है हमें। ये n रेस टू 1 n हो गया, ये 1 प्लस समेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू n u माइनस 1 अपॉन u रेस टू 2 du. Now let us solve the derivative first and then try to solve the integration. आप करोगे ये सॉल्व, रिकॉल करना पड़ेगा ये सब।
डेरिवेटिव सॉल्व करना और इंटीग्रेशन सॉल्व करना। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो टर्म्स है ये अलग अलग कर लेते हैं डेरिवेटिव में। ये जो u है वो u अपॉन यू स्क्वेयर हो जाएगा और ये 1 अपॉन यू स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा n 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू, u अपॉन यू स्क्वेयर हो गया 1 अपॉन यू, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वेयर, और ये du, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इंटीग्रेशन डालते हैं इसमें। ये 1 अपॉन यू जो हो जाएगा आपका log u हो जाएगा, और ये 1 अपॉन यू हो जाएगा माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। Have you written this? Shall we proceed? आगे जाए। अब ये तो ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। ये 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n, ये जो इंटीग्रेशन है अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसलिए ये यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन मुझे ये ब्रैकेट में लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 to n। पहले डेरिवेटिव सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव होता है log u, और 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है प्लस 1 अपॉन यू, और ये है हमारा 1 से n तक। फिर ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। ये पहले डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते, तो इंटीग्रेशन में आपको पता है पहले n लेते हैं फिर 1 लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आगे हो जाएगा हमारा n 1 प्लस, फिर ब्रैकेट में ये जो है क्या ले, यहाँ पर कोई बोल सकता है? पहले n लेना पड़ेगा, फिर उसमें 1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो u की जगह पर n आ जाएगा पहले, log n plus 1 upon n log n प्लस log 1 plus 1 upon 1 1 अपॉन n 1 upon 1 n n। ओके, 1 अपॉन n, और next minus माइनस, पहले n डाल दिया फिर 1 डालते, फिर log n minus 1। log 1 कितना आता है? log 1 0 0 log 0, और ये 1 अपॉन 1, ये आ जाएगा आपका 1। 1 मतलब पहले मैं यहाँ पर लिखूं -0 -1। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा n, फिर ये 1 प्लस log n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ओके, ये +1 और ये -1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर आपका बचा है n log n प्लस 1 अपॉन n। अब ये n से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा log n प्लस 1, n चला गया, ये हो गया। ठीक है, अभी ये जो ऑर्डर है ये क्या आ जाएगी, दोनों में से +1 निकल जाता है और सिर्फ जो बड़ी टर्म है वो रह जाती है। क्या यही सॉल्यूशन था हमारा मर्सॉट का?
हाँ. So this is the way we solve divide and conquer recurrence relation using Mercer, using Akrabazi formula. आप क्या करो, खुद सॉल्व करो, लिखो ये. मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वो भी यहीं पर करते हैं. लिख लिया ये नोटबुक में? यस मैम. ओके. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. Solve the recurrence. Some scary looking recurrences is. So यहाँ पर मैं recurrence लिखती हूँ t of n. अब यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर अर्ली टर्म्स वगैरह उसका कुछ भी यूज नहीं किया हमने. डायरेक्टली रिकरेंस लिया, वहां रिकरेंस ए और बी की वैल्यूज निकाली, पी की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला में डाली, वहां पर सिर्फ पी की वैल्यू लगती है और फंक्शन लगता है. तो यहाँ पर हमारा जो अर्ली टर्म्स है, ये है वो है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती जो हमें सारे रिकरेंसेस में पढ़ रही थी, पहले भी पढ़ रही थी. तो अक्रावाजी फॉर्मूला में अर्ली टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती रिकरेंस सॉल्व करने के लिए. तो इसलिए डायरेक्टली एक रिकरेंस लेते हैं. ये है t ऑफ n 2 t n by 2 प्लस 8/9 t 3n by 4 प्लस n स्क्वायर. ये रिकरेंस रिलेशन है. आपको इसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, p की वैल्यू निकालनी पड़ती है. तो p की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम लोग कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है. तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है और ये तीसरा फंक्शन है. तो ये दोनों होमोजीनियस टाइप के हैं. टी टी है तो होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस. तो ये हो गया हमारा फंक्शन g ऑफ u. ये हो गई पहली टर्म, ये हो गई दूसरी टर्म. तो यहाँ पर ये है a1, तो ये है a2, ये है b1, तो ये है b2. ओके. तो फिर a1 की वैल्यू लिखेंगे. कितनी है a1 की वैल्यू, बोलो? 2. t नहीं, 2. ओके. b1 की क्या वैल्यू है? 8/9. 1/2. 1 by 1/2. 1/2. a2 की क्या वैल्यू है? 8/9. 8/9. और b2 की क्या वैल्यू है? 3/4. 3/4. 3/4. और g ऑफ u क्या है? n square. ओके. Square. अब आगे क्या करते हैं, p की वैल्यू निकालते हैं. लेट p इक्वल्स टू. तो आप मुझे बताओ कि p की क्या वैल्यू मैं लूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. पता. तो आप पहले 0 लेकर देखो, 0 से सेटिस्फाई होती है तो वो लेंगे. 1 लेके देखो, 1 से सेटिस्फाई होती है तो वो लेंगे. 2 लेके देखो, 2 से सेटिस्फाई होगी तो वो लेंगे, नहीं तो फिर 3 लेना पड़ेगा. बोलो मुझे कि p की क्या वैल्यू लूं मैं. Try yourself.
1 मैम. 1 सेटिस्फाई करती है? Yes मैम. ओके 1 लेकर देखते हैं. तो मतलब जो फॉर्मूला है समेशन, ये है AI BI रेस्ट टू P इक्वल्स टू 1 फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to 2 होगा. मतलब ये कैसे होगा? A1 B1 रेस्ट टू P प्लस A2 B2 रेस्ट टू P. तो A1 है आपका 2 और B1 है 1/2 रेस्ट टू 1 प्लस 8/9 into 3/4 रेस्ट टू 1. अब ये आ गया 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस, देखो P की वैल्यू 1 तो सेटिस्फाई होगी नहीं क्योंकि ये 1 प्लस हो गया. तो ये हो गया आपका 4 2/3. 3 3. तो ये हो गया 2/3. तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 3 into 1 5/3. तो 5/3. इक्वल्स टू 1. तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ. इसका मतलब P की वैल्यू 1 नहीं है. क्या लेनी चाहिए P की वैल्यू? बोलो. 0 पर भी नहीं हुई क्या? 1 पर भी नहीं हो रही है? आप सॉल्व कर रहे हो या थक गए हो पहले लेक्चर के बाद? 3 मैम. P ची व्हॅल्यू 3 3. हो. 2 का नाही घेत आहे? 2 पण सॅटिस्फाय नाही करत आहे का? नाही सॅटिस्फाय नाही करत आहे. नीट बघा, माझ्याकडे तर होतंय सॅटिस्फाय. If I take it 2, it will become 2 into 1/2 raised to 2 plus 8/9 into 3/4 raised to 2. तो ये हो जाएगा 1/2, isn't it? ये हो जाएगा 1/2. होते मैम. और ये हो जाएगा 8 into 9/9/16. तो ये हो गया 8299. तो 1/2 and 1/2. ये हो गया 1. ये सेटिस्फाई कर रही है, तो P की वैल्यू 2 होनी चाहिए. ओके, अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सिंपल है, इजी आ जाता है. सिर्फ P की वैल्यू निकालते आई कि डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन सॉल्व हो जाता है. तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है. सो हमने देखा कि P की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये सेटिस्फाई होता है. तो फिर इक्वेशन लिखेंगे T of n थीटा n रेस्ट टू P मतलब n² प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n. अब फंक्शन है हमारा u² और u रेस्ट टू P प्लस 1. तो P है 2 और प्लस 1 मतलब ये हो गया आपका u³ du फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट. फिर ये हो जाएगा n² प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n 1/u. ये ज्यादा सिंपल है. दिख रहा था कि बहुत डिफिकल्ट दिख रहा था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा सिंपल है.
isn't it? तो ये हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन के लिए फिर हम ये लिख लेंगे 1/u क्या आता है? log u. log u आता है और वो हो जाएगा आपका 1 से n तक और फिर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा पहले log n माइनस -0 1 log 1 0 आता है तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 1 प्लस log n फिर n स्क्वायर एक गलती हो गई यहाँ पर फॉर्मूला लिखने में, यहाँ प्लस नहीं है ना, है क्या प्लस यहाँ पर? No, ma'am. Into a. into so n square into 1 प्लस n स्क्वायर log n। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी टर्म है? n स्क्वायर बड़ी है या n स्क्वायर log n? n square log n N square log n. n square log n will be the solution of this recurrence relation। recurrence relation दिखने में कितना डिफिकल्ट दिख रहा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन उससे पहले मर सॉर्ट से भी इजी था। ओके, सो दिस इज द वे वी यूज Akrabazi formula to solve the divide and conquer recurrence relations। okay, now ये तो एक फॉर्मूला है, वैसा ही दूसरा फॉर्मूला है जिसे हम मास्टर थ्योरम बोलते हैं। मास्टर थ्योरम यूज करके भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक पहली मेथड हमने देखी जो अकराबाजी फॉर्मूला यूज करती है और इस मेथड से मोस्टली सारे रिकरेंस रिलेशंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इससे भी इजी मेथड है हमारे पास जिसे मास्टर थ्योरम बोला जाता है और मास्टर थ्योरम के लिए कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, वो फॉर्मूला यूज करके हम और रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ होमवर्क के लिए। यू जस्ट वेट। Two minutes wait। I have to find out it।
Okay, I am not getting it right now. The problem for homework, I'll post it on Classroom or on our group later on. I have to find it out on my machine. I'm not getting it. So now we will go for the master theorem. So in master theorem, we use some just wait. Okay. Is this visible to you? Yes. Yes, ma'am. Okay. This is master theorem. One is Akrabazi formula and second one is master theorem. Here we write this. Let f be an increasing function that satisfies the recurrence relation f of n equals to a f n upon b plus c, general format of divide and conquer recurrence, where n is divisible by b. N is divisible by b and a is greater than or equals to 1, b is integer greater than 1 and c is positive real number. अगर जो रिकरेंस रिलेशन है ये इस फॉर्म का है, f of n equals to a f of n by b plus c. Whenever n is divisible by b, where a is greater than or equals to 1, b is greater than 1 and c is positive real number, then कुछ भी कैलकुलेट मत करो, अकरावाजी फॉर्मूला भी यूज मत करो, प्लग चक गेस वेरीफाई कुछ भी मत करो, सिर्फ ये जो a की वैल्यू है ये अगर 1 से ग्रेटर है तो ये सॉल्यूशन होगा, अगर ये 1 है तो ये सॉल्यूशन होगा. Furthermore, when n is equals to b raised to k and a is not equals to 1, where k is positive integer, f of n equals to c1 n log a to the base b plus c2, where c1 and c1 equals to f1 plus c upon a minus 1 and c2 equals to this one. ये जो सब है इसे हम एक एक एग्जाम्पल यूज करके देखने ही वाले हैं. सबसे पहले हम एक सिंपल एल्गोरिथम है और सिंपल एग्जाम्पल है उसे देखकर पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए पहले हम बाइनरी सर्च वाला एग्जाम्पल लेते हैं. बाइनरी सर्च आप सबको पता है. बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, लीस्ट लेते हैं और लीस्ट में जो नंबर हमें ढूंढना है तो वो लीस्ट पहले हम लोग मिडल में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो नंबर है मीडियन से कंपेयर करने के बाद हाफ पार्ट में ही उसे ढूंढते हैं. तो इसलिए हम लोग
एग्जाम्पल लेंगे. एस्टिमेट द नंबर ऑफ comparisons used by a binary search. बाइनरी सर्च अल्गोरिदम के लिए पहले हमें उसका रिकरेंस लिखना पड़ेगा. तो आप बता सकते हो क्या बाइनरी सर्च का रिकरेंस रिलेशन? अब आपको ये पता है कि हमें अर्ली टर्म और इनिशियल टर्म्स नहीं लगने वाली है, तो हमें सिर्फ रिकरेंस रिलेशन लगने वाला है. अब आप अगर देखें तो अगर लिस्ट में n एलिमेंट्स है तो हम क्या करते हैं, लिस्ट को मिडिल में डिवाइड कर लेते हैं. ओके, तो मिडिल में डिवाइड करने के लिए हमें n/2 स्टेप्स लगती हैं और उसके बाद हम एलिमेंट है उसे कंपेयर करते हैं कि वो फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में है. Isn't it? तो उसके लिए कंपैरिजन के लिए हमें लगता है अगर हमारे लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो पहले तो हम एक कंपैरिजन करेंगे मीडियन के लिए, मतलब मीडियन से वो जो नंबर जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो लेस है या ग्रेटर है. अगर लेस है तो फर्स्ट हाफ में ढूंढते हैं, अगर ग्रेटर है तो सेकंड हाफ में ढूंढते हैं. इसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या लगती है कि जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए. Isn't it? तो फिर बाइनरी सर्च का रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? यस, बाइनरी सर्च में जो एलिमेंट हम सर्च करने वाले हैं उस प्रॉब्लम को हम पहले n/2 में डिवाइड करते हैं. इसके लिए कंस्ट्रेंट है कि हमारा n जो है वो इवन होना चाहिए. रिकरेंस फाइंड आउट करते वक्त हम लोग ये ध्यान में ही रखते हैं कि n ऑड है या n इवन है. तो सपोज n इवन है, तो n इवन है तो लीस्ट को मिडिल में डिवाइड करने के लिए हमें n/2 करना पड़ेगा. फिर हमें 2 कंपैरिजंस लगेंगी. एक, टू डिटरमाइन वेदर एनी टर्म्स ऑफ लीस्ट रिमेन. ये लीस्ट हम मिडिल में डिवाइड करते करते रिकर्सिव सॉल्यूशन में जब तक एक टर्म नहीं रह जाती है तब तक डिवाइड करते हैं. तो लीस्ट में एक ही एलिमेंट है क्या, इसके लिए एक कंपैरिजन लगती है, और दूसरी कंपैरिजन हमारा एलिमेंट मिल गया कि नहीं इसके लिए लगती है. तो हमारा बाइनरी सर्च का जो रिकरेंस रिलेशन है वो कुछ इस टाइप का हो सकता है. T of n/2 plus 2 for n greater than or equals to 2 or for even n. आप एग्री करते हो इस रिकरेंस से और नॉट? बाइनरी सर्च का रिकरेंस रिलेशन इतना ही है. सॉर्टेड लिस्ट है इसलिए मिडिल में डिवाइड हो गई. अगर एलिमेंट कंपेयर हुआ, अगर लेफ्ट हाफ पार्ट में आता है तो फिर मिडिल में डिवाइड होगी. अगर लेफ्ट हाफ पार्ट में आता है तो मिडिल में डिवाइड होगी. कब तक करेंगे, जब लिस्ट में एक ही नंबर ना हो जाए. जब एक नंबर आ जाएगा तो फिर कॉन्करिंग शुरू हो जाएगा. इसलिए रिकरेंस रिलेशन फॉर बाइनरी सर्च ये आता है. अब यहाँ पर ये जो रिकरेंस रिलेशन है जहां पर n इवन है, तो फिर हमारा जो एल्गोरिदम है उसमें अगर हमने देखा, ये एल्गोरिदम है यहाँ पर, और हमारा रिकरेंस रिलेशन हम यहाँ लिख लेते हैं f of n equals to f of n/2 plus 2. n is even. ओके,
तो यहाँ पर जो a है, a मतलब ये कोएफिशिएंट और b मतलब ये कोएफिशिएंट, ये है a और ये है b, यहाँ पर b है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे रिकरेंस में? 1 है। ओके, a की वैल्यू 1 है। तो ये जो एल्गोरिदम है यहाँ पर देखो, a की वैल्यू 1 है तो उसकी ऑर्डर क्या है? log log n। n। तो इसलिए अब बाइनरी सर्च के एग्जांपल में a is equals to 1, so by master theorem t of n equals to order of log n। ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की जो सॉल्यूशन है या कॉम्प्लेक्सिटी log n ही है या कुछ अलग है? देखिए आपने, बोलो। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है पता है क्या? वही है मैम। क्या हमने निकाली, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। हाँ, रॉन्ग है। log n ही है ना बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी? यस मैम। यस, इट इज करेक्ट। तो ये है मास्टर थ्योरम। देखो अब फिर से जाएंगे अकराबाजी फॉर्मूला और ये मास्टर थ्योरम। ये मास्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये अगर a की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगी, a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये आ जाएगी, लेकिन उसके लिए जो f ऑफ n है ये इस टाइप का होना चाहिए, जहां पर ये f a कोएफिशिएंट है, n अपॉन b है और c कांस्टेंट है। ये जो है ना, ये अगर ये कांस्टेंट हुआ और ये रिकरेंस इस टाइप का हुआ तब आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और अगर ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो टर्म है सेकंड टर्म, ये अगर फंक्शन हुई और वो फंक्शन इस टाइप का हुआ तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो अब हमने एक एग्जांपल देखा बाइनरी सर्च का, जिसे हमने इस टाइप का रिकरेंस है वो और डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि हम अगर f ऑफ n दूसरा फंक्शन यूज करते तो हम c1 और c2 कैसे निकालते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तब तक मैं आपको एक होमवर्क के लिए देती हूँ कि आप रिकरेंस ढूंढ के रखो। मैं यहाँ पर लिखती हूँ उसको, find the recurrence relation of, you write down this as an homework, find the recurrence relation of the algorithm that finds minimum and maximum of a given sequence। ये आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में इंप्लीमेंट किए होंगे पहले, या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने ये प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं। हम लोग एक एरे लेते हैं, एरे में से मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करते। तो आप ये सर्च करके या फिर बबल सॉर्ट यूज करके भी कर सकते हैं। बबल सॉर्ट यूज किया या फिर कोई और सॉर्ट यूज किया तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि आप ये सॉर्ट करो या वो सॉर्ट करो, सिंपल एल्गोरिदम है। तो फिर आप नंबर कंपेयर करो, फर्स्ट नंबर विथ सेकंड नंबर, देन से choose among them which one is minimum, then compare with third number, bubble sort kind of algorithm you can use। और उसका रिकरेंस आपको मुझे बताना है।
कल के लेक्चर में। जब आप वो रिकरेंस मुझे बताओगे फिर हम मास्टर थ्योरम यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, shall we stop now? Let me stop recording.